गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज हम एचपी बोर्ड की क्लास 12th का एक और सैम्पल पेपर 4 सॉल्व करेंगे। सो लेट्स बिगिन। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स इन सिंपल क्यूबिक इज 52.4%. Which of the following solution will have highest freezing point? तो freezing point के लिए हमें पता है कि depression in freezing point is proportional to molality of the solution. Molality means number of moles. तो जिस भी solute के number of moles सबसे ज़्यादा होंगे उसमें depression सबसे ज़्यादा होगी, यानी उसका freezing point सबसे कम होगा। तो हमें क्योंकि हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट चाहिए तो हम वो सोल्यूशन देखेंगे जो डिसोसिएट कम करती है, यानी उसके नंबर ऑफ आयन सबसे कम होंगे। तो AlCl3 4 आयन्स देगी डिसोसिएशन पे, BaCl2 3 आयन्स देगा, NaCl2 देगा, जबकि सुक्रोज डिसोसिएट नहीं करता है, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट सबसे हाई होगा। The units of cell constant is L upon A, that is centimeter upon centimeter square. So answer is centimeter inverse. The colloidal system in which both the dispersed phase and dispersion medium are same is called emulsion. ये liquid in liquid है, दोनों liquid state में, जबकि gel है liquid in solid, aerosol है solid और liquid in gas, and foam gas in a liquid. यहाँ dispersed phase and dispersion medium different है। Basicity of phosphorus acid H3PO3 is, basicity के लिए हम number of ionizable hydroxyl ions देखते हैं। H3PO3 का structure आपको पता होना चाहिए, 2 OH है, means इसकी basicity 2 है। The reaction 2Rx plus 2Na in presence of dry ether to form alkane with double number of carbon atoms and 2NaX is called Wood's reaction. Vitamin B12 cobalamin में cobalt metal होगा। Phenol on reaction with concentrated nitric acid in presence of concentrated sulfuric acid will give 2,4,6 trinitrophenol. When ethanol is reheated with Fehling solution, it gives precipitates of red colored precipitates of cuprous oxide. Acetyl chloride की जब हम रोजनमंड रिडक्शन कराते हैं पैलेडियम हाइड्रोजन बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में, तो एल्डिहाइड बनता है। एसिटाल्डिहाइड इज द राइट आंसर। Then E naught of cell and delta G naught are related as delta G naught is equal to minus NF E naught of cell. The class of drugs used for treatment of cut or wound are antiseptics. What is meant by the term broad spectrum antibiotics? Explain. So antibiotics which are used for treating a large range of bacterial diseases are called broad spectrum antibiotics. Example is chloramphenicol. The next question is, calculate the 2/3 life of a first order reaction having K is equal to 5.48 into 10 raised to power minus 14 second inverse. तो K है 5.48 into 10 raised to power minus 14. फॉर्मूला है T is equal to 2.303 upon K log A upon A minus X for a first order reaction. क्योंकि 2/3 of reaction हो गया है तो T 2/3 हो जाएगी 2.303 upon K log of A upon A minus 2/3 A. इतना रिएक्ट कर गया है, तो सॉल्व करने पे ये 1/3 A नीचे आ रहा है और ये A और A कट जाएगा और 3 ऊपर चला जाएगा। तो log 3 की वैल्यू 0.4771 है और 2.303 इंटू 10 इज पावर 14 अपॉन 5.48 इंटू 0.4771 सॉल्व करके आंसर आ रहा है 2 इंटू 10 इज टू पावर 13 सेकेंड. दिस इज द time taken for 2/3 of reaction to take place. What are lyophilic and lyophobic colloids? Give one example if each. The colloids in which the dispersed phase has a good affinity towards liquid is called lyophilic colloid. Lyo means liquid, philic means loving. For example, gelatin and starch. And colloids in which dispersed phase does not have much affinity towards liquid
that is the dispersion medium, then it is called lyophobic collide. Examples of lyophobic collides are metal sulfides and oxides. Differentiate between mineral and ore. So minerals are naturally occurring substances that exist in the earth's crust, whereas minerals from which metal can be conveniently and profitably extracted are called ore. Raw structure of XeO3, तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, लेकिन एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ज्योमेट्री इज रिड्यूस टू पिरामिडल. देन P4O6 में आप P4O10 का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे? आप P को टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट में लिख कर और हर फॉस्फोरस को, 2 फॉस्फोरस को थ्रू ऑक्सीजन आप अटैच कर लीजिए चारों साइड से. देन 2 ऑक्सीजन्स इस तरीके से ऑपोजिट साइड्स की 2 फॉस्फोरस के साथ अटैच करके आ जाएंगी और हर फॉस्फोरस को ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड O के साथ जोड़ देना है, एंड यू गेट द स्ट्रक्चर ऑफ P4O10. Then next is on the basis of valence bond theory, explain the geometry and magnetic behavior of हेक्साअमीन कोबाल्ट 3+ आयन. पहले इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे. X + 6 × 0 is 3, तो ये आ गई 3. तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27. कॉन्फ़िगरेशन हो गई आर्गॉन 18 3d7 4s2. अब +3 स्टेट में ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स का एक रिमूव हो गया, तो रह गई कॉन्फ़िगरेशन 3d6. अब क्योंकि इसमें जो अमीन है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो वो इन इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग करा देता है और एज अ रिजल्ट 2 d ऑर्बिटल्स फ्री हो जाएंगे. ये 2 d ऑर्बिटल्स, एक s और 3 p, आपस में इंटरमिक्स और डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपनी एनर्जी और हाइब्रिडाइजेशन अंडरगो करेंगे, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन. अब ये जो 6 ऑर्बिटल्स ऑफ इक्वलेंट एनर्जी बनते हैं, इसमें 6 अमोनिया मॉलिक्यूल्स अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ईच डोनेट करके ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में कम्प्लेक्स को बनाते हैं. सो ज्योमेट्री इज ऑक्टाहेड्रल, और क्योंकि देयर आर नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो कंपाउंड इज डायमैग्नेटिक इन नेचर. राइट और नोट ऑन हेल्वोलाड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन. तो जब किसी कार्बोक्सिलिक एसिड को ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरस हीट करते हैं and then later on react with water, तो अल्फा पोजीशन के कार्बन के जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस हो जाते हैं विद ब्रोमीन हेलोजन. पहले एक हुआ फिर दूसरा भी हो जाएगा. इस तरह से ये जो रिएक्शन है इसको हेल्वोलाड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन कहा जाता है. राइट 2 मेथड्स ऑफ प्रेपरेशन ऑफ फिनोल. तो हम बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को वाटर के साथ हीट करेंगे, फिनोल बनेगा. और रशीद मेथड में क्लोरोबेंजीन को वाटर और HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर फॉस्फेट एट 698 केल्विन रिएक्ट करते हैं, तब भी फिनोल बन जाता है. वाटर फ्रियॉन्स. सो डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन इज फ्रियॉन and its 2 uses are, it's used as an refrigerant in refrigerators and air conditions, and it is used as a propellant in aerosols and foams. What do you mean by abnormal molecular masses? तो जब हम किसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से मोलर मास कैलकुलेट करते हैं और वो एक्चुअल मास से एग्री नहीं करता है, तो उस मास को एबनॉर्मल मोलर मास कहा जाता है. द मोलर मास कैलकुलेटेड थ्रू colligative properties is sometimes different from actual mass, then the mass is known as abnormal molar mass. And ये तब आता है जब solute particles या तो association कर जाते हैं या dissociation कर जाते हैं. इसमें ऑप्शन भी है. वाई इज अमोनिया रिगार्डेड एज अ गुड कम्प्लेक्सिंग एजेंट? दिस इज बिकॉज अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ये इजीली डोनेट कर सकता है और लुईस बेस की तरह एक्ट करके किसी ट्रांजिशन मेटल के साथ कम्प्लेक्स बना सकता है जो कि स्टेबल होता है, इसलिए इट्स अ गुड कम्प्लेक्सिंग एजेंट. डिफाइंड सूडो हेलोजेंस. तो जो कंपाउंड्स पी ब्लॉक एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बने हैं उनकी प्रॉपर्टीज हेलोजन से सिमिलर हैं, लेकिन उसमें कोई भी हेलोजन का एटम नहीं है, तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम सूडो हेलोजेंस यानी झूठे हेलोजेंस कहते हैं. फॉर एग्जांपल डाइसियानोजन इज अ सूडो हेलोजन.
Why do noble gases have zero electron gain enthalpy? Because noble gases की outermost configuration complete है, NH2 NP6, तो इसको इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत नहीं है. They have complete filled valence cells, so they do not undergo any chemical reaction, so electron gain enthalpy will be zero. Their compounds are stable, rather electron gain करने पे unstable हो जाएंगे. Oxygen shows covalency of 2 while sulfur shows covalency up to 6 atoms, क्योंकि ऑक्सीजन जो है इसमें d ऑर्बिटल नहीं होते हैं, अपनी कोवलेंसी को एक्सपैंड नहीं कर सकता, इसलिए सिर्फ 2 शो करता है. जबकि सल्फर में आउटरमोस्ट शेल में d ऑर्बिटल भी हैं, उनको यूज़ करके अपनी कोवलेंसी को एक्सपैंड करके 6 बॉन्ड तक बना पाता है. What are interhalogen compounds? How are they classified? तो interhalogen compound is a molecule which contains 2 or more different halogen atoms, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या एस्टाटीन. और इनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं इनटू डाई एटॉमिक इंटरहेलोजेंस, टेट्रा एटॉमिक इंटरहेलोजेंस, हेक्सा एटॉमिक इंटरहेलोजेंस एंड ऑक्टा एटॉमिक इंटरहेलोजेंस. इसमें 8 एटम्स हैं, वो ऑक्टा एटॉमिक इंटरहेलोजन. Next question, anti-Markovnikov rule or peroxide effect applies to addition of HBr only and not addition of HCl or HI to unsymmetrical alkene. तो anti-Markovnikov addition अकर करती है free radical mechanism से, जिसमें आपका जो propagation reaction है वो exothermic होना चाहिए. HI के साथ ये reaction इसलिए नहीं होता है कि HI वाला reaction endothermic होता है, और HCl या HF के साथ ये रिएक्शन इसलिए नहीं होता है कि इनको ब्रेक करना मुश्किल होता है, इनके बॉन्ड्स ये स्ट्रॉन्ग होते हैं और तो टूटते नहीं हैं आसानी से, इसलिए सिर्फ HBr के साथ ये रिएक्शन होता है. Why is Woods reaction not suitable for preparing odd number of alkenes? ऐसे एल्केन जिसमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो. तो ऑड नंबर के बनाने के लिए जब हम इस मेथड को यूज़ करते हैं तो हमारा प्योर प्रोडक्ट नहीं बनता है. मान लीजिए अगर आपने 3 कार्बन का हेलो 3 कार्बन का एल्कीन बनाना है, तो आप 2 कार्बन का एल्काइल हेलाइड और 1 कार्बन का एल्काइल हेलाइड इनको आपस में कंबाइन करेंगे. लेकिन इस दौरान क्या होगा कि जब इसको सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई हीटर हीट करेंगे तो 2 और 1 आपस में कंबाइन करके 3 का तो बनाएगा, लेकिन 2 और 2 आपस में भी कंबाइन कर जाएंगे, 1 और 1 आपस में, तो प्रोडक्ट प्योर नहीं बनता है, मिक्सचर बनता है, इसलिए ये सूटेबल नहीं होता. Define the term chirality of a compound. तो chirality is the property of a compound to have non-superimposable mirror image. ये molecules में कम से कम एक asymmetric कार्बन एटम होता है जिसको 4 ग्रुप्स जो अटैच्ड होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, जैसे कि ब्यूटेन 2-ol. Differentiate between thermoplastics and thermosetting plastics. तो thermoplastics वो पॉलीमर्स हैं जिनको हम रिपीटेडली सॉफ्ट कर सकते हैं गर्म करने पे और हार्ड कर सकते हैं ठंडा करने पर, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स जो है ऐसे पॉलीमर्स होते हैं जो हीट करने पे परमानेंट चेंज अंडरगो कर जाते हैं और इनको फिर हार्ड और इन्फ्यूजिबल हो जाते हैं और फर्दर इनको दोबारा हम मोल्ड नहीं कर सकते. इनको अपनी मर्जी से किसी शेप में मोल्ड कर सकते हैं, इनको नहीं कर सकते. थर्मोप्लास्टिक्स की एग्जांपल्स है पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स की एग्जांपल्स हैं बेकेलाइट एंड फॉर्माल्डिहाइड रेजिन्स. गिव द सिंथेसिस ऑफ नियोप्रीन रबर. तो जब हम क्लोरोप्रीन की पॉलीमराइजेशन करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है उसको नियोप्रीन कहते हैं. दिस इज द रिएक्शन. गिव द सिंथेसिस ऑफ ओलॉन. तो ये एक्राइलोनाइट्राइल की जब पॉलीमराइजेशन करते हैं तो ये पॉली एक्राइलोनाइट्राइल ये बनता है जिसको ओलॉन भी कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर एंटी डिप्रेसेंट्स. तो केमिकल और ड्रग्स जो डिप्रेशन की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं उनको हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल आइप्रियोनाइजिड एंड फिनाल्जीन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं. तो हमारी बॉडी में कुछ मॉलिक्यूल्स जैसे नॉर एड्रेनालिन जो हैं दे गिव अ फीलिंग ऑफ वेल बीइंग. अगर हमारी बॉडी में इसकी क्वांटिटी लो हो तो पर्सन में डिप्रेशन आ जाती है. तो ये वाले जो केमिकल्स हैं ये इसकी हार्मोन को ब्रेक होने से बचाते हैं, नॉर एड्रेनालिन को, और इस तरह से वेल बीइंग की फीलिंग देते हैं और डिप्रेशन को ट्रीट करते हैं, इसलिए इनको एंटी डिप्रेसेंट कहते हैं.
क्लासीफाई कार्बोहाइड्रेट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइड्रोलिसिस। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रोलाइज करें तो इट ब्रेक्स डाउन, और अगर कितने पार्ट्स में ये ब्रेक डाउन करता है उसके अकॉर्डिंगली हम इनको क्लासीफाई करते हैं। जो सिंपलर सब्सटेंसेस में नहीं ब्रेक होता उसको मोनोसैक्राइड करते हैं, जो हाइड्रोलिसिस पे 2 मोनोसैक्राइड्स में टूटेगा उसको डाइसैक्राइड कहते हैं, जो 2 से 10 में टूटता है उसको ओलिगोसैक्राइड्स, और जो बहुत ज़्यादा में टूटता है उसको पॉलीसैक्राइड कहा जाता है। Explain corrosion of metals and how can it be prevented? So corrosion is defined as gradual decay and weathering of metal on exposure to atmosphere. For example, iron on exposure to atmosphere gets rusted. अगर हमने corrosion से रोकना हो, जैसे iron को rust से रोकना हो, तो we can paint surface, we can carry out its galvanization, इसको zinc की coating दे सकते हैं, less reactive metal से इसको कोट करके atmosphere के इफेक्ट से बचा सकते हैं, और किसी ज़्यादा रिएक्टिव मेटल के साथ इसको कंबाइन करके भी इसको रस्ट से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव मेटल आयरन को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को सैक्रिफाइस कर देगा। सो दिस आर द मेथड्स ऑफ प्रोटेक्शन corrosion from corrosion. How much charge is required for reduction of 1 mole of copper ion to copper? तो कॉपर आयन को कॉपर में चेंज करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स लगते हैं। चार्ज कैरिड बाय 1 मोल इज 1 फैराडे, तो 2 मोल्स चाहिए तो चार्ज रिक्वायर्ड इज 2 फैराडे. Define molecularity of reaction. So molecularity is the number of molecules that come together to react in an elementary reaction, and it is equal to the sum of stoichiometric coefficients of reactants in the elementary reaction with effective collisions and proper orientation. Describe hydrogen oxygen fuel cell. So hydrogen oxygen fuel cell में हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को फीड किया जाता है. ये पोरस इलेक्ट्रोड्स है, यहाँ इलेक्ट्रोलाइट KOH रखी है. एट एनोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देती है, एट कैथोड ऑक्सीजन वो इलेक्ट्रॉन लेता है, इवेंचुअली वाटर बनता है, और साथ में जो इलेक्ट्रॉन्स ये देता है वो एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू मूव करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होती है. इस सेल को हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल कहा जाता है. एट एनोड हाइड्रोजन गिव्स इलेक्ट्रॉन, एट कैथोड ऑक्सीजन टेक्स दीज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म वाटर, और इस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है 1.23 वोल्ट आता है. Silver metal crystallizes with FCC lattice. The length of unit cell is found to be 4.077 into 10⁻⁸ centimeter. Calculate the atomic radius and density. So density के लिए फॉर्मूला है हमारे पास Z into M upon N into A cube. So ये Z of FCC के लिए हो जाएगा 4. मॉलिकुलर मास सिल्वर का होता है एटॉमिक मास 108. एवोगैड्रोस नंबर होता है 6.022 into 10⁻23, और जो एज लेंथ है इतनी बताई है, तो उसकी वैल्यू हमने डाल दी और उसका क्यूब कर दिया. सॉल्व करने पे ये आया 10.51. दिस इज़ द डेंसिटी. और इसकी रेडियस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है. FCC के लिए एज लेंथ A जो है इट इज़ इक्वल टू द फॉर्मूला इज़ √2A अपॉन 4. रेशनलाइज करने पे और सॉल्व करने पे आंसर आता है 1.44 into 10⁻⁸ centimeter. This is the atomic radius. What are azeotrops? A mixture of liquid that has a constant boiling point because the vapor has the same composition as the liquid mixture. These are called azeotrops. Transition metals are paramagnetic. Explain, because they contain unpaired electrons in n-1d orbitals. Transition metals form alloys because transition metals have similar sizes and one metal can easily replace the other metal from the lattice to form solid solution, which is called alloy. Give preparation of KMnO4 from pyrolusite. तो pyrolusite MnO2 को पाउडर करके इलेक्ट्रोलाइट जैसे KOH और ऑक्सीजन के साथ हम फ्यूज़ करते हैं. पोटेशियम मैंगनेट बनता है, जिसको इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो पोटेशियम परमैंगनेट बन जाएगा. नेम एनी सॉलिड इन विच बोथ फ्रेंकल एंड स्कॉटकी डिफेक्ट अकर. इट्स AgBr. Define the term zone refining. So it's a technique to get highly pure crystals of impure elements by using melting and crystallization process. जिसको हमने प्योरीफाई करना है उसको हम हीट करते हैं. इम्प्योरिटीज़ जो है मोल्टन जोन में चली जाती हैं, जबकि प्योर मेटल मेल्ट करके फिर रिक्रिस्टलाइज कर जाता है. इस तरह से 2 अलग जोन्स में वो बार
जो है कन्वर्ट हो जाएगा, फाइनली हम ब्रेक कर देंगे और इस तरह से प्योर मेटल को ऑब्टेन कर लेंगे। What is Hardy-Schulz law? The greater the valency of flocculating ion added, greater is its power to cause precipitation. This is known as Hardy-Schulz law. Define half-life period. So half-life is the time required for the quantity to reduce to half of its initial value. Write carbyl amine test. So primary amines react with chloroform and alcoholic QH to form alkyl isocyanide. एल्काइल अमीन क्लोरोफॉर्म के साथ KOH के साथ रिएक्ट करके एल्काइल आइसोसाइनाइड, इसकी ऑफेंसिव ओडर की वजह से ये पहचाना जाएगा। क्योंकि प्राइमरी अमीन्स के लिए टेस्ट यूज़ होता है, इसको हम प्राइमरी कार्बाइल अमीन टेस्ट कहते हैं। ये कार्बाइल अमीन है और साथ में KCl और वाटर बनता है। दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।